Hello students, in this video we are going to study psychological law of consumption given by Lord Keynes. Relationship between income and consumption defined by Professor Lord Keynes is known as psychological law of consumption or fundamental law of consumption given by Lord Keynes. According to this law, whenever income rises, consumption also rises, but rise in consumption is always less than rise in income, or we can say MPC is always positive but it is always less than 1. जब भी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन उसका जो राइज है इनकम के रिलेटिव लेकिन उसका जो राइज है इनकम के राइज के कंपैरेटिवली हमेशा कम होता है. नेक्स्ट, एजम्पशंस टू द लॉ. केन्स ने कुछ एजम्पशंस ली हैं इस लॉ के लिए. फर्स्ट, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स. Except change in income, there would be no change in psychological or institutional complex, say taste, preferences, habits of the customers. Next, normal conditions. इकोनॉमी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट करेगी. कोई वॉर, कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हम इसके अंदर अवॉइड करेंगे. एंड द लास्ट इज प्रॉस्पेरस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. इकोनॉमी जो होगी वो प्रोस्पेरस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी. गवर्नमेंट का किसी भी वे कोई भी इंटरफेरेंस इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द कंट्री में नहीं होगा. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. इस लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. 3 कॉलम्स, इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग. वी ऑल नो income has 2 components, consumption and saving. So if level of income is 0 in the country, consumption is 50 crores. This consumption is known as autonomous consumption. So here is this saving of 50 crores. If income rises to 50 crores, consumption rises to 75 crores. So this saving is minus 25. When income and consumption is equivalent, saving is 0. Income further rises to 150, consumption 125, there is saving of 25 crores. So, change in income is 50 crores, but change in consumption is relatively less. Let's draw diagram. On x-axis, we will take income, and on y-axis, consumption and saving. We will draw aggregate supply curve at 45-degree angle, and after that we will draw consumption curve. Consumption curve के लिए जो function होगा वो होगा C0 plus by. This is autonomous consumption, and the next is change due to change in income. So consumption curve will take a shape like this. It will start from a point on y-axis due to autonomous consumption. At 0 level income, there is a consumption and consumption rises. So, after that, we will plot saving curve, and that saving curve is also of positive slope. At this point, consumption and income is equal, so saving is 0. Saving curve starts from negative because of this saving portion, and after that, whenever there is increase in income, consumption increases, but change in consumption is less than change in income. And this difference is depicted by rise in saving. Next comes propositions of the law. So first proposition is increased aggregate income leads to increased aggregate consumption, but by somewhat a smaller amount. That is main description of the
लॉ। जैसे जैसे एग्रीगेट इनकम में राइज आता है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन का राइज इनकम के राइज के कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट कम्स इंक्रीज्ड इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। एज वी ऑल नो, income has two components, consumption and saving, same as change in income is split between these two components as well, that is delta C plus delta S. And the last proposition is an increase in aggregate income is unlikely to lead less consumption or less saving than before. It is not possible that there is increase in income and there is reduction between the two. कंजम्पशन और सेविंग में से हो सकता है कि राइज एक में ही आए, कि जितनी भी इनकम बढ़ी है आप सारी की सारी सेव कर लो, कंजम्पशन ना बढ़े, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंजम्पशन अपने पहले के लेवल से भी रिड्यूस हो जाए। सो दीज आर प्रपोजिशंस ऑफ द लॉ। नेक्स्ट कम्स इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट इम्प्लीकेशन की बात करें तो इट इज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस of investment. This law explains investment's strategic significance in an economy. इनकम और एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन शॉर्ट रन में कंजम्पशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट पर आ जाती है। सो इन शॉर्ट रन इफ वी वांट टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट और इनकम, वी नीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। सो स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स पॉसिबिलिटी ऑफ general overproduction and unemployment. किसी भी इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी को ये लॉ डिफाइन करती है। एज वी ऑल नो, income is rises but consumption rises relatively less. So अगर consumption के अंदर एक रिडक्शन है, कंजम्पशन इनकम को मैच नहीं करती, इसका मतलब जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो सारा का सारा सेल नहीं होता, तो वो चीज़ ओवर प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, स्टॉक्स को पाइल अप करती है, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में रेंडर होती है। Next comes refutation of Say's law. Say's law that supply creates its own demand is failed according to psychological law of consumption, because जितनी भी सप्लाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इकोनॉमी में है वो सारी की सारी सेल नहीं होती, क्योंकि कंजम्पशन इनकम के कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट कम्स डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एमईसी के अंदर डिक्लाइन आता है, रीजन बीइंग जितना भी प्रोडक्शन फर्म ने किया है वो सारा मार्केट में सेल नहीं होता, जो उसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एक्सप्लेन करती है पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वेट्स एग्रीगेट सप्लाई बट it is not at full employment level. Next, over saving gap. किसी भी इकोनॉमी का ओवर सेविंग गैप जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को पढ़ने से क्लियर हो जाता है। सेविंग गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग, because of increase in saving aggregate demand falls short of aggregate supply, and this excess saving lead to depression or unemployment in the country. Next comes peaks and troughs of trade cycles. बिजनेस साइकिल्स यानी ट्रेड साइकिल्स में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें भी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन अपना रोल प्ले करती है। जब इकोनॉमी बूम सिचुएशन के अंदर लाई करती है, इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है, मनी फ्लो है, वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे में जब कंजम्पशन रिलेटिवली कम रह जाती है
तो अनएम्प्लॉयमेंट रेंडर होती है, जिससे इकोनॉमी बूम से डिप्रेशन की तरफ मूव करती है। और रिकवर भी सिर्फ कंजम्पशन में एक इंक्रीज आने की वजह से ही एक इकोनॉमी करती है। नेक्स्ट कम्स सेक्युलर स्टैग्नेशन। Secular stagnation is a situation when from investment point of view economy reaches saturation point. Means किसी country के अंदर जब saving इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है that entrepreneurs do not find enough opportunities to invest that money. So level of employment maintain नहीं हो पाता, ऐसी situation को हम secular stagnation कहते हैं. Next comes state intervention. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कंजम्पशन जो है वो इनकम के कंपैरेटिवली कम रह जाती है, सो इकोनॉमी में सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बैलेंस द इकोनॉमी। नेक्स्ट, यूनिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। मल्टीप्लायर में हमने एक फॉर्मूला किया था दैट 1/1 माइनस MPC। किसी भी इकोनॉमी में इनकम प्रोपगेशन को इस फॉर्मूला से डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हायर द MPC, हायर वुड बी द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। नेक्स्ट, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। कंजम्पशन जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो काम करता है। जब भी इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन राइज होती है तो प्रोड्यूसर फील इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट। सो जिस भी कंट्री में कंजम्पशन का लेवल ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर सेंस करके अपने इन्वेस्टमेंट के लेवल को इंक्रीज करते हैं। एंड द लास्ट इज वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय वेज कट पॉलिसी, बट दैट रिडक्शन विल लीड टू रिडक्शन इन इनकम ऑफ लेबरर्स एज वेल, और जिसकी वजह से हम हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर implications ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। एंड द लास्ट टॉपिक टू कंक्लूड दिस लॉ इज क्रिटिसिज्म। बहुत से इकोनॉमिस्ट ने केन्स की इस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को क्रिटिसाइज किया है। नो प्रॉपर यूज ऑफ प्रोपेंसिटी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, प्रोपेंसिटी इज अ वेरी कैजुअल और जनरल टर्म, एंड प्रोपेंसिटी का मेन मीनिंग होता है टेंडेंसी, एंड जस्ट ऑन बेसिस ऑफ टेंडेंसी वी कैन नॉट फ्रेम अ लॉ। नेक्स्ट कम्स सिंपल ट्रूइज्म। एक बहुत सिंपल सी बात है, वेन एवर इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, एंड पर्सन अपने 100% इनकम को स्पेंड नहीं करता है, सो वो एक पार्ट को सेव करता है। इट इज अ सिंपल ट्रुथ। इसमें एक कंप्लीट लॉ जैसी कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट कम्स अनरियलिस्टिक। बहुत सारी कंट्रीज में ये लॉ अपनी डिस्क्रिप्शन को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, not secular. This law is related to only short run. It ignores long run perspective of consumption. And the last is fraud. Economist Hazlitt treats this law as a fraud. According to him, जो mathematical equation इसमें use हुई है वो precise equation नहीं है. So these are criticism related to psychological law of consumption. Students, if you find this video useful, please like and subscribe this channel. Thank you.